Students, now we are starting the new topic, the last topic of this chapter, in fact, microbes as biofertilizer. With our present day lifestyles, environmental pollution is a major cause of concern. The use of chemical fertilizers to meet to the ever increasing demand of agricultural produce has contributed significantly to this pollution. ठीक है, डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्यों बढ़ता जा रहा है, तो उससे सारी चीज़ें का कंट्रीब्यूशन भी सिग्निफिकेंटली बढ़ता जा रहा है, तो उस वजह से पॉल्यूशन, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो रोड का ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, मशीनें ज़्यादा चलेंगी, तो सब चीज़ों से पोल्यूशन तो होता ही है, तो पोल्यूशन बढ़ रहा है. ऑफ कोर्स we have now realized that there are problems associated with the overuse of chemical fertilizer. बहुत सारी problems associated है बच्चों with the overuse of chemical fertilizers, and there is a large pressure to switch to organic farming, the use of biofertilizers are organisms that enrich the nutrient quality of the soil. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड देयर इज अ लार्ज प्रेशर टू स्विच टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग. द यूज ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स are organisms that enrich the nutrient quality of the soil. बायोफर्टिलाइजर्स वह केमिकल है जो कि enrich कर देते हैं न्यूट्रिएंट क्वालिटी किसकी? सॉइल की. ठीक है, organism that enrich the nutrient quality of the soil. The main sources of biofertilizer are bacteria, fungi, and cyanobacteria. The main sources of biofertilizer are bacteria, fungi, and cyanobacteria. You have studied about the nodules of the roots of leguminous plant formed by the symbiotic association of rhizobium. आपने पढ़ा होगा about the nodules on the root of leguminous plant formed by the symbiotic association of rhizobium. These bacteria fix atmospheric nitrogen into organic forms. ये जो बैक्टीरिया हैं ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स विच इज़ यूज्ड बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट. ठीक है, ये जो बैक्टीरिया हैं ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स. ठीक है, दीज बैक्टीरिया. You have studied the nodules of the root of leguminous plant. These bacteria fix atmospheric nitrogen into organic forms which is used by the plant as nutrient. Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in the soil. Example Azospirillum and Azotobacter. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? Azospirillum and Azotobacter. Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in the soil. Examples is Azospirillum and Azotobacter, thus enriching the nitrogen content of the soil. ठीक है, क्या है? These bacteria fix atmospheric nitrogen into organism which is used for the plant as nutrient. Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in the soil. Example is Azospirillum and Azotobacter, thus enriching the nutrient content of the soil. Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in soil. ठीक है, अभी अपन ने बात करी थी ऊपर राइजोबियम की, जो एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया था. सिर्फ एक राइजोबियम ही थोड़ी ना एक बैक्टीरिया है, उसके अलावा भी तो बैक्टीरिया है जो कि फिक्स कर सकता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. पर ये क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं सॉइल के अंदर. इसके एग्जांपल क्या है? एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर, थस एनरिचिंग द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल. ठीक है, वो तो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में रहकर फिक्सेशन करता है नाइट्रोजन का, है ना, इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स. बट जो एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम है ये फ्री लिविंग रहते हैं सॉइल के अंदर, और फ्री लिविंग सॉइल के अंदर ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म्स में. ठीक है, फंजाई आर ऑल्सो नोन
to form symbiotic association with plant mycorrhiza. ठीक है, fungi are also known to form symbiotic association with plants mycorrhiza. Many members of the genus Glomus form mycorrhiza. ठीक है, fungi are also known to form symbiotic association with plants mycorrhiza. है ना, fungi जो है ये भी इनको भी हम यूज़ करते हैं टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट. ठीक है, जिसको हम माइकोराइजा कहते हैं. उसको आपने क्लास 11th के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा होगा कि फंजाई को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्लांट्स के साथ यूज़ करते हैं. उसको हम माइकोराइजा कहते हैं. और साथ में अपन ने एक लाइकेंस भी पढ़ा था और एक ये भी पढ़ा था, है ना, साथ में इसके. मैनी मेम्बर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा. मैनी मेम्बर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा. ठीक है, द फंगल symbiote in these association absorbs phosphorus from the soil and passes it to the plants. Plants having such associations show other benefits also, such as resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and an overall increase in plant growth and development. And an overall increase in plant growth and development. ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, द फंगल सिम्बायोट इन दीज एसोसिएशन एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पासेज इट टू द प्लांट. Plants having such association show other benefits also, such as resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and an overall increase in plant growth and development. बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार बोले जा रहा हूँ कि जो फंगल सिम्बायोट है इनकी एसोसिएशन के अंदर ये मैनी मेंबर्स किसके, ग्लोमस जीनस के माइकोराइजा फॉर्म करते हैं. और जो फंगल सिम्बायोट है इन एसोसिएशंस के अंदर वो अब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस सॉइल से और पास करता है प्लांट्स को. ठीक है, प्लांट्स जिनके पास सच एसोसिएशंस हैं ये शो करते हैं अदर बेनिफिट्स ऑल्सो, सच एज जैसे कि रेसिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन, जैसे कि रेसिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, है ना, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट. ठीक है, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, एंड एक ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, कैन यू टेल अदर एडवांटेजेस टू फंजाई डिराइव फ्रॉम दिस एसोसिएशन. ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन ऑर्गेनिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, मेनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एग्जाम्पल एनाबीना एंड नॉस्टॉक. ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं. साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स के अंदर. ठीक है, मेनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एग्जाम्पल एनाबीना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया. ओके, एक्सेट्रा इन पैडी फील्ड्स. साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर. जो साइनोबैक्टीरिया है वो सर्व करता है एज एन इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बायोफर्टिलाइजर की तरह, इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर की तरह कौन एक्ट करता है, साइनोबैक्टीरिया. और ये कैसा है, एक ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स के अंदर, फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एग्जाम्पल क्या कौन कौन से हैं साइनोबैक्टीरिया के, एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया. पैडी फील्ड्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया सर्व करता है एक इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर. ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे also add organic matter to the soil and increase its fertility. जो ब्लू ग्रीन एल्गी है अपनी वो ऐड करती है ऑर्गेनिक मैटर सॉइल को, है ना, और इंक्रीज करती है उसकी फर्टिलिटी. सही बात है एकदम. बीजीए और साइनोबैक्टीरिया ऐड करती है ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. करंटली अपने नेशन में, अपनी कंट्री में
A large number of biofertilizer are available commercially in the market and farmers use these regularly in their fields to replenish soil nutrients and to reduce dependence on chemical fertilizers. बहुत ही बढ़िया पैराग्राफ है बच्चों. देखो जो साइनोबैक्टीरिया है ये एक ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब है, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एरिया में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, अनाबीना ऑसिलेटोरिया एंड नॉस्टॉक. ठीक है, फिर पैडी फील्ड्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया एक बायोफर्टिलाइजर के लिए वाइडली यूज़ करा जाता है. ब्लू ग्रीन एल्गे भी ऑर्गेनिक मैटर को फिक्स करती है सॉइल के अंदर और इंक्रीज करती है फर्टिलिटी. ठीक है, उससे पहले अपन ने क्या पढ़ा, फंजाई के बारे में पढ़ा. ये क्या फॉर्म करती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म कर लेती है प्लांट के साथ, जिसको हम माइकोराइजा कहते हैं. बहुत सारे मेंबर्स जो फंगस के अंदर जीनस ग्लोमस होता है ना, ये भी फॉर्म करता है माइकोराइजा. फिर जो फंगल सिम्बायंट होता है एसोसिएशंस के अंदर, वो एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस सॉइल से और पास करता है प्लांट को. ठीक है, और इसको और प्लांट को पास करता है. ठीक है, और जो प्लांट्स हैं हैविंग सच एसोसिएशन ये अदर बेनिफिट्स भी दिखाते हैं, जैसे कि रेसिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन, टॉलरेंस टू सैलिनिटी और ड्रॉट रेजिस्टेंस, और ओवरऑल इंक्रीज होता है प्लांट की ग्रोथ में और उसका डेवलपमेंट में. तो ओवरऑल प्लांट्स के लिए ये सब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और फ़ायदेमंद रोल प्ले करते हैं. ठीक है, और साथ में इससे ऊपर अपन ने क्या पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जो स्विच हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि बायो फर्टिलाइज़र्स का अपन यूज़ कर रहे हैं. और ये जो बायो फर्टिलाइज़र्स हैं ये एनरिच कर देते हैं न्यूट्रिएंट क्वालिटी सॉइल की, है ना. और मेन सोर्सेज बायो फर्टिलाइज़र्स के क्या हैं,